Big Basket presents the RCB podcast. This is Big Basket presents the RCB podcast, Bold and Beyond. For many years, we've heard this conversation. Where are the Indian experienced batters when it comes to the middle order for RCB? This season, it's been a different one. It's been a game changer. With Virat Kohli, you've had Devdutt Padikkal, and in place of Dinesh Karthik, you have the finisher in Jitesh Sharma. Living up to that role, let's find out more about what it takes to be a finisher. Jitesh, thank you so much for joining us. आपने इस season में जो the role that you have adapted to, you're required to be switched on all the time. Yes, ma'am. लेकिन अभी जब हम बात करते हैं आराम से, तुम बहुत chill आदमी हो. हाँ. So how do you switch this on? ये कहाँ से आता है? कुछ आपने ये skill develop किया है कि अंदर में पहले से था? I don't know. I think it's all because of my family maybe. Sanskar, I think. I mean, so once I come out of the ground, I feel very calm. Means I feel humble, grounded kind of thing. I can't describe that feeling. मतलब but एक और दिन था, हाँ, normal दिन. that's it. Once I get inside the rope, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ऐसे feel होता है कि just I want to give my 100%. That's it. I want to put my body on the line and do something good for my team. That's mindset I've been always there from my childhood. But पहले होता था कि ऑफ द फील्ड में लेके आता था उस चीज़ को, वो एग्रेशन, और मैं थोड़ा बहुत हाइपर होता था ग्राउंड मीन्स ऑफ द फील्ड. आई यूज्ड टू बी वेरी means all the time about game, that energy I used to bring out of the field. But slowly when I start playing more cricket, more professional cricket, I got to know that these are two different life. You have to balance somehow. So ice and fire kind of thing. लेकिन ये balance कहाँ से आता है? What is the trick? Because it's not just cricket ना, normal life में भी हम यही सोच रहे हैं. We're so switched on for our professions, हम switch off कैसे करें? Few spiritual things have helped me. Means like I used to read Bhagavad Gita, few shloks and everything. I think trying to be in the present is the most important thing, and it's very difficult to do. But I think अगर आप उसका 20% 30% भी करो तो I think you can balance those life. I feel that being in present all the time. Maga. Weather Andre, perfect fit. Cinema Andre, super hit. 10 minutes Andre. Boys, big basket. 10 minutes Andre, big basket. 10 minutes Andre, big basket. Big Basket, delivering in Bengaluru and everywhere in 10 minutes. As broadcasters, हम numbers के बारे में जब बात करते हैं, like you now have batters who strike at 140 against spin, who's average over 40 against spin, and spin is very important. कुछ साल थे जब भारतीय बल्लेबाज स्पिन नहीं खेल पा रहे थे. Where did that change? Domestic circuit में क्या चल रहा था where you actually took on spin or improved your game against spin? मेरे लिए जिस स्टेट से मैं आता हूँ, विदर्भ, आई थिंक वी आर मोरली फोकस ऑन स्पिनर. इफ यू प्ले रणजी गेम, इफ यू प्ले एनी गेम, वी ट्राई टू प्ले स्पिनर फ्रेंडली विकेट. तो हम वही कोशिश करते कि वहाँ वो खेले. आई थिंक फिर वो खेल के आई थिंक वो इन बिल्ड मेरे पे आया, और मैं हमेशा अटैकिंग बैट्समैन था, तो स्पिनर फ्रेंडली विकेट पे भी मैं अटैक करने की कोशिश करता था. आई थिंक दैट स्किल गॉट डेवलप बाय ईयर एंड ईयर. अभी वो लोगों को दिख रहा है, और रजत के साथ भी सेम होता था, क्योंकि डोमेस्टिक ये चीज़ में बहुत हेल्प करता है. क्योंकि आपको जब गेम जीतना होता है, होम का जब रणजी मैच होता है, या आप कोई जैसे T20 खेलने जाते हो, क्योंकि वो इतना फेवर जैसे IPL जैसे फ्लैट विकेट्स नहीं मिलते आपको, या कुछ तो भी. And then how do you improve the game against pace? Because अब तो जो विरोधी कप्तान है, they're very smart. They know Yes. exactly how to rotate bowlers, and they will most often have a third seamer that bowls in the middle over. स्पिनर को कब तक छुपाएंगे, उनको तो आना ही पड़ेगा. दैट्स द प्लान वी टॉक अबाउट. बट वी आर हाईली स्किल्ड टू प्ले फास्ट बॉलर ऑल्सो. सो हम जहाँ स्पिनर को 20 अगर 15 का 18 का ओवर निकाल सकते हैं, तो हम फास्ट बॉलर को वाई नॉट 10 12 एटलीस्ट. दैट्स द टैक्टिकली वी कैन गो टू डेवलप सच स्किल कि वो 10 12 का वो मीन्स वो हमेशा मार्जिन हमेशा क्रॉस करते रहे, और वो स्किल डेवलप करे कि टू पुट प्रेशर ऑन द फास्ट बॉलर, सो वो मिस्टेक करे और वो कुछ करे. Back end में what's a bad over for you in terms of runs नहीं बने? What is looked at as a bad over? बैड ओवर मीन्स मतलब target assume नहीं कर रहे. I'm just talking from that perspective. आप back end में आए हैं. What is a non-productive over? ऐसे we can use that word. 6 run in a over. I think if That you are playing on a flat track,
whatever the situation is. I think nowadays cricket has been changed. अभी, हाँ, from first ball everyone is trying to hit six. तो वो पहले बॉल से कोशिश कर रहे कि वो सिक्स मारे, बाउंड्रीज की तरफ जाए, हमेशा प्रेशर दे बॉलर्स को. I think if you see now nowadays 180 220 is not safe on a flat. You can अभी वो कॉन्फिडेंस आ गया है सारे टीम को, जैसे से ग्रो हो रहा है क्रिकेट. So everyone feels if 220 they feel that they are 20 run short. So that's the thing has been changed. पहले जब सैयद मुश्ताक अली आया सबसे पहले 150 160 was like oh what a good total. फिर 180 हुआ. 180 means the bowler used to be like one side in this game. Then 200, now it's 230. So that's the thing. I think 6 run per over is now. That is Right. a good over for the bowler. Yes. जो आपके bowler निकाल Excellent over for the bowler. जो आपके आरसीबी के bowler निकाल सकते हैं. मुश्ताक अली में what is the level of competition like these days? Because हर साल बदल रहा है, champions are changing. There is a pool of solid 30-40 players Yes. जो आप T20 selection के लिए भी शामिल हो सकते हैं. Ma'am, you won't believe that सैयद मुश्ताक अली के जो प्लेयर है अभी तक रिवील नहीं हुए, वो शाइन नहीं किए आई थिंक आईपीएल लीग्स में. जो अभी पंजाब किंग्स का एक आर्या करके प्लेयर है, इफ़ यू सी हिम ऐसा फील होता है कि ये प्लेयर था कहाँ अभी तक. ऐसे प्लेयर्स यू वोंट बिलीव मैम कि अभी भी सैयद मुश्ताक अली में है. दे आर वेटिंग फॉर देयर चांस एंड दे आर डूइंग रियली वेल. आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मुझे किसी ने देखा और पिक कर लिया उनके पहले और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. Seriously, because when I play with my teammates, I feel this man bats like insane. He can play every shot. Now they are also become very smart. They have evolved. They have changed their games. I spoke with my juniors. They said, "Bhaiya, I want to score 200 in a test match, but in 220 balls, 180 balls." So that's mindset has changed in every format. But in Syed Mushtaq Ali, they are insane. The bowlers are like they start planning कि जितेश भैया को आईपीएल में यहाँ डिफिकल्टी, तो फर्स्ट बॉल वो डालते. मैं सोचता हूँ उसको कैसे पता. मींस हाउ मींस दिस लेवल ऑफ क्रिकेट हैज बीन चेंज इन सैयद मुश्ताक अली also. Because of Syed Mushtaq Ali and the level of competition, आप जो already है in the sense in the India circles and Yes. playing IPL, आप अपने ऊपर कभी प्रेशर लेते हो कि juniors will come and I mean नहीं, Whatever. मैं उस टाइम पे मैं इस साल में सैयद मुश्ताक अली का कैप्टन था. आई टोल्ड देम दैट it's not your responsibility to win the game, it's my responsibility. मैं आपको फ्रीडम देता हूँ. यू जस्ट गो एंड एंजॉय योर T20 गेम. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई हैव प्लेड सो मच क्रिकेट एंड सो आई डोंट वांट टू पुट देम इन प्रेशर कि आपको गेम जीतना है. अभी कोई लड़का डेब्यू कर रहा है जो यंगस्टर्स आए, तो आई डोंट वांट टू गिव देम एनी प्रेशर. लेट्स यू एंजॉय योर T20, गो एक्सप्लोर एंड आई that's the thing. So I take the responsibility there in Syed Mushtaq Ali. So I will take the hard things on me. और हर फॉर्मेट खेलने में from red ball to white ball ज़रूरी है to help in your T20 game. Does it at all help और confusion रहता है? If you have proper clarity, अगर आपको क्या चाहिए वो सीजन में आपके पास अगर वो थॉट प्रोसेस वो क्लैरिटी, आई थिंक इट्स वेरी इजी. if you try to find excuses all the time कि this format that format, then there is a list कि आप वो excuses निकाल सकते हो कि अरे यार वाइट बॉल था, T20 था, रेड बॉल था, पर क्योंकि लोग कर लोग रहे हैं अभी ना. चूज कर रहे हैं, हाँ, right? People are making that choice. I respect their choice. No, it's their choice and वो openly accept करे, that's a good thing. But I think all the format help you to grow your batsmanship. Means आप जैसे बैटिंग करते हो, जैसे इनिंग बिल्ड करते हो, स्किल डेवलप होता है. I feel you go through all the phases of the game. In days cricket is different phase, one day is a different phase, in T20 is a different phase. When you see all three phases, then you got to know how to control the game in future if you play on a higher level. So I think all three formats are beautiful and they are very helpful for growing you as a cricketer. पहले जब हम T20s, I'm talking about like 5 years before when we used to look at finishers, बस simply just hit the ball. Yeah. But if you're a technically good batter, आपको कितना help करता है being a finisher? Is it because you can score in different areas? Yes. Like how does it help you? Recently, I worked with DK bhai about the lap shot, sweep to the fast bowlers and this. वो मेरे पास शॉट्स थे और वो मैं डेवलप इसलिए कर पाया क्योंकि आई हैव अ सर्टन परसेंटेज ऑफ स्किल्स, इसलिए मैं वो डेवलप कर गया. इफ़ आई डोंट हैव द स्किल आई कैन डेवलप दो शॉट्स. सो आई थिंक स्किल बेस है आपका, तो फिर आप उसके साथ कुछ भी मीन्स उसको आप मेक ओवर कर सकते हो कि ऐसा ये पैर वैसा. इफ़ यू हैव अ बेसिक स्किल, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास स्किल हो तो आप कभी भी अगर ऊपर से नीचे गिरते तो यू कैन स्टार्ट अगेन. If you don't have skill, you will always keep finding my stance, my bat, my grip and everything.
my elbow, my shoulder. So he'll be always in those positions. लेकिन आप तो टॉप ऑर्डर में भी खेल रहे हैं अब जी। जो टॉप ऑर्डर बैटर्स को मौका मिलता है टू मे बी प्ले देमसेल्व्स इन आपको नहीं मिलता हाँ, So do you ever feel like for example, if you Yes, yes. come and strike the first ball and you get out the first ball, आप अपने ऊपर लेते हो कि या मैं रन नहीं बना पाया, or is it just part of being a finisher? it's part of finisher. पहले मैं बहुत मीन्स मैं मेरे सदमे में रहता था, ऐसे मैं बोलता हूँ, अफसोस में रहता था। फिर जैसे मैं ओपन से आया, पहले वही शॉट को मुझे 4 रन मिलते थे, अभी वही शॉट को 1 रन मिलता है, क्योंकि स्वीपर होता है। इफ आई प्लेड वेरी गुड कवर ड्राइव, स्वीपर 1 रन देता है, पर पावर प्ले में वो 4 रन देता है। बट स्लोली ग्रेजुअली आई गॉट टू नो कि ये फिनिशर के साथ ये प्रेशर, ये फेल्यूर्स आते ही रहेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई रिस्क। इफ यू गो नंबर 5-6, इफ यू ट्राई टू हिट 6 एंड यू कॉट ऑन द बाउंड्री, इट्स ओके, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। सो फिर पहले मैं थोड़ा सा रहता था, यार रन नहीं बनाए, 10 ही रन बनाए, 20 ही रन बनाए। फॉर मी बड़े रन डजंट मैटर, हाउ आई फिनिश, हाउ आई हेल्प माई टीम टू गेट दोज रन, 10-20 रन्स मीन्स ऑन अ क्रूशियल मोमेंट, वो एक्स्ट्रा रन मेरे बॉलर्स के लिए सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट एज अ ओपनर और टॉप ऑर्डर बैट्समैन। Actually, game बदल चुका है in the sense that even as broadcasters now, we've also realized कि जब top 3 के बारे में बात करते हैं, औसत दिखाई, show the average. When you're speaking about number 5, 6 and 7, show the strike. Strike rate, yeah. Right? Not how many Thank 50s or God. 100. हाँ, हाँ. नहीं बदला है because you realize role definition. Yes. So आपको लग रहा है कि लोग people have changed maybe in the way they consume cricket in terms of कि आपका रोल यही है तो आपके strike rate पे हम focus करें. हाँ, पर अभी भी आई मीन्स स्लोली चेंज हो रहा है, क्योंकि इफ आई गो टू डोमेस्टिक लेवल, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, सॉरी टू से, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर डेवलपिंग नाउ, दे आर मीन्स ट्राइंग टू लर्न, बट मीन्स वो सोचते हैं कि यू हैव नॉट स्कोर 50, सो इट्स मीन्स इज अ बैड सीजन और समथिंग, बट if I scoring, keep scoring 30, 13, 10, 15 balls, 10, 15 ball, and my team is winning, so they will say you are scoring only 30 runs. See that guy is scoring 50, 60. But I can't explain them. But it's very फिर ये balance आप कैसे ढूंढोगे in terms of it's worthless to explain those people, because जिनको cricket पता है, जिनको cricket आता है, they will appreciate me. That's why my value is high this year, because RCB know this, that I can do this thing. पर ऑब्वियसली दोबारा भारत के लिए खेलने के लिए सपने तो आप पूरा रखेंगे तो यू आर इन इंटरेस्टिंग पोजीशन आरसीबी और आईपीएल में अच्छा करने के लिए या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल में हम आपकी स्ट्राइक रेट के बारे में बात राइट अभी जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ कि माई जॉब इज टू स्कोर मैक्सिमम whatever the opportunity I get. That's I try to keep things simple, because last year मैंने वही गलती की थी, and that's why I missed something in my life. So I don't want to be silly again. I just want to focus on one game. I just want to enjoy my cricket. I just want to enjoy that middling the ball, hitting the six. That's my fun. I love it. So मैं वही enjoy करता हूँ. Yeah, but back of the mind there is always to wear that blue jersey, to play for India, to do something magical for India, to win something. ICC ट्रॉफी और समथिंग लाइक, वो तो एक होता ही है मैम, वो चलते रहता है, वो इमेज पीछे चलती रहती है, टू विन अ कप फॉर आरसीबी और समथिंग लाइक दैट, थिंग्स गो, बट आई थिंक बट यू हैव टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, देन you can means plan, execute all the things if you are keeping all things simple. So I try to just enjoy every game, every pressure, whatever comes in front of me. That's the thing, I'm enjoying my cricket. मिस समथिंग आप T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं बट हम वी ऑलवेज मैनिफेस्ट या गोल या बिलीफ तो रखते हैं कि आई विल बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड सो व्हाई डू यू से लाइक यू मिस्ड इट मतलब यू डिडंट गेट पिक्ड आप कह रहे थे कि आई वाज थिंकिंग अहेड उसका मतलब क्या होता है मींस आई एम समवन हु वाज अलोन कि मैंने खुद ही सीखा है कुछ चीज़ें क्रिकेट में कभी इससे बात करके कभी उससे बात करके आई वाज नॉट इन अ कांस्टेंट टच सो आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दोस थिंग्स एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वॉज सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप एंड मुझे वो कभी फीलिंग मैंने फील नहीं किया, तो सो आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. तो मैं पहले ही मैच जाने के मतलब जैसे मैं अफगानिस्तान टूर हुआ था मेरा इंडिया का, और आई वॉज डूइंग वेल फॉर इंडिया एंड आई वॉज थिंकिंग दैट आई विल बी देयर इन T20. तो मैं जैसे IPL में आया, सो आई वॉज थिंकिंग कि रन्स करना 150 करता हूँ, 250 करता हूँ, सो आई विल बी देयर. सो आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट गेम प्लान, आई वॉज वरीड अबाउट स्कोरिंग रन्स, अरे इस मैच में रन हो जाए, इस मैच में रन हो जाए, तो आई वॉज वरीड अबाउट स्कोरिंग रन्स, बट वो कैसे करना है उस पर फोकस नहीं कर रहा था. सो आई वॉज गेटिंग मीन्स लाइक I was batting really well that season also. Means in the nets I was hitting the ball very well. I was in practice game I scored
lots of run. But once the matches came against DC, it was my first game. Means I never played reverse sweep in my life. But मैंने reverse sweep खेला वो match में I got stumping. I was stunned. What this happened? And I keep asking this question again and what is happening? What is happening? What is Selection का pressure. हाँ, that's the thing. I think I was thinking too much कि यार वर्ल्ड कप खेलूंगा तो ये होगा मीन्स मेरे स्टेट में मेरा नाम होगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, वो होगा. सो वो होता है, एक बच्चा सोचता है अभी पैसा है तो ये गाड़ी लूँ, ये करूँ, मीन्स वो ख्यालों में चला गया. हाँ, तो फिर वो चीज़ें और वर्स्ट होती गई. फिर टीम लगी, हाँ मीन्स वर्ल्ड कप की, तो आई फील कि मेरे बॉडी से सारा प्रेशर निकल गया. एंड आई स्कोर्ड अगेन इन लास्ट 2-3 गेम्स. Wow. So then I got to know that. हाँ, फिर you guys went on that run. Yeah. Yeah. Then I got to know that it was here. So it's okay. It was a good learning. I think अगर वो चीज़ फिर से आए मेरे लाइफ में, so I can handle it. But आप वर्ल्ड कप के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? There's 2 years to go. You're a wicket keeper also, Yeah. right? So and it's always good to be all rounder because wicket keeper batters also all rounders. So आप क्यों नहीं सोचेंगे? इस बार अगर आप सोचेंगे कि ये लक्ष्य पहुंचना है मुझे, how will you approach it differently? Just focusing on one ball at a time. I think वो मुझे help करेगा मैच जिताने के लिए. I think I want to keep it very simple in my life. Take the pressure off. Yes, that's it. I just want. I'm with you, so I will be with you here. I will talk to you with open heart. If I go in the ground, I will open my heart and play, enjoy, run here, there, do my stuff, and I will come out, chill. If I'm watching Netflix, I will be like in the Netflix about things. क्या देखते हो Netflix पे? हाँ? Recently, I'm watching Yellowstone. हाँ, that's good. It's a good series about the ranch. So I will be like in it. So that's the thing. I'm just focusing. Means In the present. present here. जो कुछ Simple thing. ಮಗ ವೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. 10 minutes ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ 10 minutes ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ 10 minutes ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ Big Basket, delivering in Bengaluru and everywhere in 10 minutes. आप क्यों कह रहे हैं कि आपने अपने शहर का नाम रोशन नहीं किया? मतलब कौन है वहां से जिसने देश के लिए खेला आईपीएल नहीं कोई नहीं खेला but it's expect और कर रहा हूँ. I feel that I can do. But Basket. already like you have put like Yeah. you know your city on the map from Yeah. that perspective. दूसरी बात ये आप कह रहे थे जब आप देश के लिए खेल रहे थे कि ज्यादा लोग इतना आपका नाम नहीं चलाते थे जब आप आरसीबी के लिए खेल रहे थे. हाँ. It is a big franchise to play for. Yes, It's a ma'am. global Yes, franchise, exactly. right? तो उसके हिसाब से what जब आप when you play आपने आरसीबी के लिए ट्रायल्स भी दिया है पहले. So नहीं यार, मैंने एक ही बार एक ही बार दिए थे. Yes. Now that you're playing, अब क्या कहते हैं लोग घर पे आपके पड़ोसियों? Ma'am, you I mean, fully what you is the won't reaction? believe, ma'am. अभी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई मेरे लाइफ. Yeah. मेरे जो मिस कॉल्स देखेंगे, आप मैसेज देंगे, यू वोंट बिलीव. मैं 2 दिन फोन स्विच ऑफ करता हूँ और मैं अलग नंबर एक वाइफ को और फैमिली को दिया, उस पे वो कॉल करते हैं. Yeah. क्योंकि बिकॉज ऑफ द आरसीबी पीपल आर जस्ट कॉलिंग मी, आई नीड टिकट्स, आई नीड वो टिकट, आई तो नीड टिकट्स. वेलकम टू द क्लब. ये तो होता Yeah. ही है. इन लोगों को भी फोन करते हैं. डोंट वरी, नॉट द ओनली वन. एंड माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स आर लाइक विराट भाई से मिला दे, विराट भाई से मिला. मैंने बोला मैंने खुद फोटो नहीं खींचा, मैं तेरे कहाँ खींचा तू. मींस गुड. क्यों नहीं फोटो खींच? अब मैंने एक पंजाब किंग्स के इस वक्त में एक फोटो खींचा. तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एकदम से जाके किसी से, मींस आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम फ्रॉम फार एंड. देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ उनसे. पर फ्लाइट में तो बात ही हाँ, किया बात- होगा ना हाँ, कि द हाँ. फोन इज नॉट Yes, yes. देयर. क्या बात है क्या पे? मींस आई वाज टॉकिंग अबाउट माय इंटेंसिटी इन द गेम, हाउ ही मैनेज टू, मींस वो एग्रेशन के साथ वो माइंड चलाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. मींस एक जॉब ऐसा आई फील, क्योंकि आप जब एग्रेसिव होते तो यू आर नॉट क्लियर विथ योर माइंड कि वो डिसीजन, पीपल से व्हेन यू आर काम यू कैन टेक द डिसीजंस, बट दैट पर्सन ही इज फुल ऑफ एनर्जी एंड स्टिल ही नोज हाउ टू प्ले हिज गेम while batting. Means he will keep running hard, take twos. We people like next ball, but he will, means he play the game. That's what I was asking to him कि आप कैसे manage करते हो. He said that कैसे उनको means ट्रेनिंग ने हेल्प किया है. means Yeah. जो ट्रेनिंग वो करते हैं कि कितने इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं कि मैच उनके लिए इजी हो जाता है. फिर उन्होंने बोला है कि कभी कभी ये नेचुरली फील आपको आता है कि मैच को आते वक्त फील होता है कि दिस इज़ नॉट माई डे. तो हाउ टू कोप विथ इट कि आप फिर वो छोटे छोटे गोल्स रख के उस मैच में आप एनर्जी आपका कैसे ऊपर ला सकते हो कि यू आर अ ह्यूमन. ही सेड कि हर गेम में ऐसा नहीं होगा कि यू विल बी एक्टिव ऑल द टाइम. ऐसा होता है कि कोई दिन नहीं नींद होगा, कुछ होगा. तो ही सेड मेक अ स्मॉल गोल्स कि मैं 3 और फोकस करूँगा मेरे कीपिंग में, फिर नेक्स्ट 18 बॉल्स, नेक्स्ट 18 बॉल्स, नेक्स्ट 18 बॉल्स. सो somehow you have to manage your energy. So फिर in batting you are feeling that you are not hitting the ball well, so come to zero again and try to think about running hard.
trying to middle your ball. I mean, something, this small tricks he have teach me, told me that are most important thing, taking your time between the two balls. People say it's not, means उतना time मिलता नहीं है, but he said that वहाँ time होता है और आप ले सकते हो. So I think you can take a breather there. You can find a way to take a pause and think, to calm your nerves and think about the game, कि एक decision लेने के लिए. And he said that I know, I can understand. People like you who comes in the number of 5, 6, they always think about hitting 6. But if you are, but with your intensity, you are clear that how to attack. Think about, means आपका focus आप shift कीजिए. Sorry, I'm going very deep. No, please do. That's small things he have told me. One of the greatest things you can learn from Virat Kohli is how to run between wickets. मतलब आप टूर्स कह रहे हैं, 4 भागे थे ना पंजाब के But I can run with him. So that was what I was going to ask. Despite being a finisher, where some लोग सोचते हैं boundary or sixer, you can still create pressure, right? Yeah. By rotating strike. So how important, how much of that do you work on with DK and how important is that? Just, विराट कोहली के साथ बैटिंग कर रहे हो तो भागना तो पड़ेगा. yes, ma'am, I'm ready. And I can tell you that he will be happy that I'm running with him. I'm someone who, मेरे teammates भी बोलते हैं कि I blindly trust my partner. अगर मैं बॉल की तरफ नहीं, मैं उसके तरफ देखता हूँ. If he running, I will shoot. So I think he will love running with me. अगर मैं उनके एनर्जी को कोप कर सकता हूँ रनिंग बिटवीन द विकेट, आई फील कि मैं उनके साथ प्रॉपरली रनिंग कर सकता हूँ. मींस आई कैन रन 2 runs 3 runs. आई एम क्विक इन, आई फील दैट आई एम क्विक. But is it also important for Yes. a finisher to finish off games knowing how to run well? That's also how you create. The margin of winning is 1 run. Yeah. 1 run is important. If you see lots of games, super over against Yeah. DC and everything, margin of 1 run, I think that 1 run is also important. It's equally, means वो 6 run और 1 run important है मैच जीतने के. Now tell me one thing. Cricket की शुरुआत थी क्योंकि आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे. हाँ. How did you reach playing for RCB then? कभी आपने सोचा Yes, था उस समय Yes, ma'am. से जर्नी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कभी सोचते मैं हो? खुद हंसता हूँ मैम कभी-कभी बैठ के. मींस आई फील दैट, हाँ मार्क्स मिले कि नहीं मिले? हाँ मिले मैम. जो वो 69% 73 होता है ना, और बताने का वो फील आता है ना, कॉन्फिडेंट, आई गॉट 73. हाँ, 70 is like top percentile है, top 20%. हाँ, तो मिले मुझे. 12th में भी मिले, 10th में भी मिले. तो आई लव माय जर्नी. When did it become serious? उस समय भी आप मतलब विकेट कीपर नहीं थे तो चलो हम विकेट कीपर हाँ. बनते हैं. तो when did it become serious कि you know what, actually कुछ टैलेंट है मेरे अंदर? You won't believe, till under 19 फर्स्ट ईयर, मीन्स मैं जब स्कूल के लिए खेला हूँ, मुझे क्लब से ऑफर आया कि दैट यू आर, और मैं ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला था. मीन्स मैं अपने गली में प्लास्टिक बॉल से खेलता था. एंड आई यूज्ड टू लव फुटबॉल. हाँ, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, मीन्स स्केटिंग, मैं ये सब करता था. इलाके में या स्कूल? नहीं, स्कूल में प्रॉपर, मीन्स जिम्नास्टिक केस में जाके, मलखाम हमारे इधर बोलते हैं, हमारे HUP में मलखाम करके, तो उसको पोल पे चढ़ना पड़ता है, तो वो करता था. तो फिर स्कूल में ऐसे ही मैंने वो स्टोरी तो बताई है कि मैं ट्रायल्स के लिए गया, वो % के लिए, फिर स्कूल के लिए मैं खेला. आई डोंट नो हाउ आई वाज बैटिंग वेल. मुझे फियर नहीं था वो बॉल का, आई फील. तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, जो सीजन प्लेयर थे उनसे अच्छे रन्स बनाना था. तो माय क्लब कोच सॉ मी एंड सेड व्हाई डोंट यू जॉइन द क्लब. तो पापा को मैंने बोला, ऐसे बोल रहे थे, गो, बोले तुझे NDA जाना है तो तेरा फिटनेस हो जाएगा, तू थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा. समय भी NDA का था, NDA, दैट्स इट. फिर पापा बोले वहाँ फिटनेस होगा, फिजिकल एक्टिविटी चलते रहेगा. अरे ठीक है. फिर वो बोले कि डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स होते हैं, कि जिससे सिलेक्शन होता है बोर्ड टीम के लिए, VCA के लिए, विदर्भ के. तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, चलो. तो खेल रहा हूँ, सिलेक्ट हो रहा हूँ, अंडर 16 खेल लिया. मैंने टीम में आ गया, मींस अंडर 16 स्ट्रेट अवे. आई वाज इन द टीम, आई वाज स्कोरिंग इन सिलेक्शन. कौन थी उस टीम में at that time? Do you remember? No, I don't. No one, Means my state, I got picked in for my state team. फिर अगले साल सर बोले कि अभी तुझे NDA देना है. मैंने नहीं सर, मैं 1 साल देख रहा हूँ सब कुछ, फिर करता हूँ. तो अंडर 19 के ट्रायल से बोले फर्स्ट ईयर. मैं ठीक है सर, देता हूँ. तो आई गॉट पिक्ड अंडर 19 एंड आई वाज द यंगेस्ट प्लेयर इन द टीम. हाँ, सारे सीनियर्स थे मेरे, जो 2 साल से खेल रहे थे अंडर 19 लास्ट, और मैं सबसे यंगेस्ट था. और फिर और जो टीम में सबसे अच्छे बॉलर्स थे, आई वाज फाइंडिंग वेरी इजी टू प्ले. आई डोंट नो, बिकॉज मेरा कुछ था नहीं. मैं सोच रहा हूँ 2 महीने मस्त अच्छे होटल में रहेंगे. टेक्निक नेचुरल से था? It was like you were naturally No. talented or you I was worked with? natural. I was not natural. I think मेरा पहला कोच यूट्यूब है. मैं रोहित शर्मा की बहुत बैटिंग देखता था. उस समय भी आप यस, मैं जब थोड़ा सीरियस हुआ क्रिकेट के लिए, तो मैं रोहित शर्मा की तरफ बहुत ये हुआ.
मैं मैचेस के वक्त जब मैं विजय हजारे ये जाता था उनकी बैटिंग देख के जाता कि उनकी बैटिंग देखने के बाद ऐसा लगता है यार क्या इजी है क्रिकेट। फिर मैं एकदम एकदम लेजी एकदम आराम से Lazy elegance हाँ वाले। वो देख फिर ऐसा फील होता था। फिर अंडर 19 खेला फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर फिर से सर बोले ट्रायल देना सर मुझे एनडीए जाना है पापा वोंट अलाउ। तो पापा बोले कोच ने पापा से बात की नहीं खेल तू मराठी में बोले वो कि तेरी इच्छा है तो खेल कोई दिक्कत मतलब मराठी में बोल रहा था तुझी इच्छा असेल तर खेळ काही प्रॉब्लेम नाही तू बिंदास खेळ म्हटलं ठीक आहे मी खेळतो 19 सेकंड इयरला आलो आणि मी माझ्या टीमचा हायेस्ट रन स्कोरर झालो बोर्डसाठी really हां आणि मग म्हणे तुला नेक्स्ट इयर कशी टीम बनवायची आहे मी म्हटलं नेक्स्ट इयर सर मी नाही आहे नेक्स्ट इयर मी नाही खेळणार आहे क्रिकेट नाही खेळणार yeah. तो VCA वाले म्हणजे शॉकमध्ये होते की हा पोरगा यार आपल्यासाठी अंडर 19 मध्ये एवढे रन केला ना मग तुम्ही पुढच्या वर्षी येणार Did you ever feel वो एनडीए के जो फॉर्म्स आते वो सब कर चुके थे नहीं नहीं, मेरे अभी तक। पापा ने एक ऑप्शन बी रखा था। ये मैंने बहुत कम लोगों को बताया कमर्शियल एकेडमीज होती थी तो उनमें उन्होंने बात करके रखी थी अगर ये इंडिया में फेल होता है या कुछ ऊपर कुछ नीचे पढ़ाई करना पड़ता है हाँ इसमें। पढ़ाई करना हाँ, पड़ता है और अगर एयरफोर्स में नहीं जा सकता है तो एटलीस्ट ही कैन ट्राई फॉर कमर्शियल बिकॉज आई ऑलवेज लव टू fly the plate हाँ कि ऐसा कुछ तो भी वो उससे जुड़ा रहे। फिर VCA से मुझे जो ये गलती से हो गया कि you were the ma'am. top run getter and all that come on I don't यार, know this is- seriously seriously फिर लोग मुझे जो आजू बाजू के जो रिस्पेक्ट मिलने लगा कि ये एक नया लड़का आया है फिर सीनियर के लिए मीन्स वो सोच रहे कि सीनियर्स के लिए फिर मुझे डायरेक्ट 19 सेकेंड ईयर से सीनियर कैंप्स में डाला। मैंने बोला मैं पापा जी बोलता हूँ मेरे पापा बोले पापा जी ये कुछ काहीतरी चुकीचं होत आहे म्हटलं इथं चल जान देना बोले जो चल रहा है चलने दे Yeah. देख ले क्या होता है। That's true. So I got a captain for under 19. I played for Syed Mustaqil at the age of 20. Wow. And second year I got picked for IPL. So then I got serious after under 19 second year. And was it that IPL की जो contract आई you were like okay now this is big league मतलब Yeah, means- मेरे अंदर कुछ है। yeah, after 19 पापा convince हो गए थे उस yes, समय? yes, he is very chill man. Means उनको तो क्रिकेट बहुत पसंद है पर मेरा प्रोफेशनल मुझे जाना था हमेशा एयरफोर्स की तरफ तो he is very happy now. तो उस समय आप वीडियोस देख रहे हैं YouTube videos now you get into the big leagues now there are coaches there's you know overseas coaches so did it at that stage you're still young sometimes it messes with your cricket or messes with your mentality like how did you take it उस समय आई थिंक वो बहुत ख़राब टाइम था मेरा 19 जब सेकंड ओनर के बाद सीरीज जब हुआ ना तब मेरा सब चीज़ें थोड़ा उल्टा नीचे होना चालू हुआ क्योंकि मैं टेक्निक के बारे में सोचा आई स्टार्ट टॉकिंग विद द पीपल और आई थिंक ये होता है डोमेस्टिक में बहुत प्लेयर्स के साथ। आई कैन टेल यू ओपनली दिस कि जब कोचेस चेंज होते रहते हैं ना साल में तो एज एन अंडर 19 किड आई हैव अ ट्रस्ट ऑन यू। हम जो क्योंकि हम जैसे बैकग्राउंड से आते हैं जिस गांव से आते हैं जो भी है तो वी हैव वन थिंग वेरी कॉमन इन वी ट्रस्ट इजीली जो भी आगे वाला कोई बड़ा आदमी बोलता है तो हम वी इजीली ट्रस्ट। तो अगर फिर एक कोच थे वो अंडर 19 में सेकेंड ईयर में ऑस्ट्रेलिया से आए उन्होंने मेरा टेक्निक चेंज किया सो आई ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम एंड विद इन 6 months ही लॉस्ट हिज जॉब एंड आई वाज लाइक इन बिटवीन। फिर नेक्स्ट कोच आए वो 3 महीने के लिए उन्होंने कुछ तो भी छेड़खानी किया आई लॉस्ट अगेन 1 साल के लिए कोच आए हिज थ्योरी वाज डिफरेंट हिज टेक्निक वाज डिफरेंट आई गॉट पिस्ड मींस फिर मुझे समझ में आया व्हाट इज प्रोफेशनल क्रिकेट yeah दैट्स द थिंग यू कैन ट्रस्ट मींस एवरीवन and how when you play for different teams you did really well at Punjab Yeah. Kings also so उस समय but when you play for different IPL franchises also या अलग रोल है हाँ उनकी मेंटालिटी अलग होता है कोई हर एक्सपेक्टेशन टीम में भी अलग रोल भी है यस मैम हाँ। सो आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू आप आईपीएल तभी आते हो जब आप डोमेस्टिक में अच्छा करते हो आप डिफरेंट पीपल से मिल चुके हो डोमेस्टिक में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट खेल चुके हो वो पॉलिटिक्स से स्टेट के पॉलिटिक्स से आप बाहर आते हो क्लब का पॉलिटिक्स स्टेट का पॉलिटिक्स पहले काश कुछ नहीं पता था फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते आप रन्स करते जाते हो तो ये बातें चलती रहती है आजू बाजू फिर वो आप ये डिनाई नहीं कर सकते आपको उसके साथ इवॉल्व होना ही पड़ता है आपको खुद की स्किल उतना डेवलप करना पड़ता है कि एक कान से सुनना दूसरे कान से छोड़ने की तो फिर वो चीज़ें वो कब बदला आपके लिए I आपने think- कान से सुना दूसरे कान 2017 आफ्टर 2017 आई थिंक वो चीज़ चेंज हुई मेरे लाइफ में इट वाज अ वेरी नॉट डिफिकल्ट वाज अ लर्निंग फेज फॉर मी आई सी इट वेरी पॉजिटिवली बट इनिशियली मैं उसको पॉजिटिव नहीं देखता था तब मुझे पता चला कि आई एम वेरी इजी टू हर्ट आई एम वेरी मैं किसी के मैं सुन लेता हूँ जल्दी ऐसा फिर आफ्टरवर्ड आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड थिंग इन दिस क्रिकेट
So आपके लिए क्या जरूरी है? To always be talking about the cricket? Yeah, No. other things that. So what are the other things you like talking to your teammates? शायरी, philosophy, Oh, philosophy. That's yeah. good. Means I love to explore. I love to take new knowledge. If I don't know about something and this guy knows any XYZ knows something, I will sit with him and listen. So I feel that I'm curious. I want to be, be child to learn, to have that curiousness about anything. So I will go in deep, talk. Philosophy के बारे में कौन बात करता है इस टीम में? इस टाइम तो मैं नहीं कर रहा हूँ किसी के साथ, पर हमारे फील्डिंग कोच हैं स्टिक, मैं उनके साथ ही कन्वर्सेशन कर रहा था अबाउट फूड, बॉडी, मींस द सोल, मींस इज इट मींस नेसेसरी टू डू सम स्टफ और नॉट, इज इट वर्थ और नॉट, सो सम काइंड ऑफ नहीं, but it's a good question to have क्योंकि Yeah. ये इतना high stakes दुनिया है, the pressure is so high, you need to take the pressure off. अभी अब रजत के साथ भी बहुत अच्छी हाँ. friendship हो चुकी है ना सालों में, तो see him एक तो to see him grow into this leader role, that to RCB के captain, it's a big deal. Right. What were the conversations you had about that? We share some special bond because we play for a central zone. तो वो special bond था and we have something very common. The coach he means चंद्रकांत पंडित, वो 3 साल हमारे स्टेट में भी थे, अभी उनके स्टेट में गए and he is a very strict coach, discipline coach in a good way. तो मीन्स वो कुछ चीज़ें करते तो इट्स बिकम अ टॉपिक, यू नो, हाँ यार उन्होंने मुझे वहाँ ऐसा बोला था, मीन्स दिस टॉपिक्स कम्स आउट एंड आई नो हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम बिकॉज वी प्लेड एज ग्रुप टुगेदर, बिकॉज पहले बीसीसीआई में सेंट्रल जोन होता था, जैसे रेलवे महाराष्ट्र जो जोन था, हम एक ही जोन में थे, तो और हम कुछ हॉबीज बहुत सिमिलर शेयर करते हैं, जैसे चाय, दोनों को चाय बहुत पसंद है, तो फिर हम दोनों की अगर बातें सुनेंगे तो बोलेंगे आपकी कोई 2 पागल लड़के बैठे इधर, ये कुछ भी बातें कर रहे हैं. So means even we don't know what we talk sometime. Means yeah, silly friendship. talks. हाँ, exactly. Some that silly talks. गपशप होता तो है, हाँ. चाय और चर्चा तो होना ही है, होना ही है. है ना? हाँ, कभी-कभी गॉसिप करते हैं इनके बारे में, किसी के बारे में. So good fun. और अब आरसीबी की ड्रेसिंग रूम में भी ऐसे चाय और चर्चा करते हैं, हाँ? ढंग से लोग आपको छोड़ते हैं, आप दोनों साथ में नहीं, हम दूर रहते हैं, पहले मैच खत्म करते हैं, फिर मैच के पहले हमारा थोड़ा एक रूटीन है कि हम दोनों जाते, हमेशा जाते ही एक कोई भी कैफे वहाँ जाके दोनों बैठेंगे. सो इट्स काइंड ऑफ अ रिचुअल टू विन अ गेम. तो आप दोनों बहुत ही यूनिक सिचुएशन में इस साल में, एक तो इनको कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है और काफी साल से ऑब्वियसली ही इज बीन लुक्ड एट एज वन ऑफ अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली वन ऑफ द इंडियन बैटर्स दैट हैज स्टूड अप. इस साल आप भी आए हैं उसमें, उस रूप में, उस रोल में, बिकॉज डीके इज नॉट हियर. तो आप दोनों जो है भारतीय बल्लेबाज, यू आर बीइंग लुक्ड एट फ्रॉम आरसीबी's perspective, that you can help them go all the way. उसका प्रेशर या एक्साइटमेंट या एंटिसिपेशन आपने कभी सोचा है? क्योंकि सालों से वी हैव नॉट हैड दैट. We both are someone means who don't worry about results. We always believe in process. Means, or I think big blessing is that DK is teaching us. We means Rajat Kaur मुझे वो I think he's sharing his all experience. और अभी तक जितना भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, means मुझे फील होता है कि मैं प्रॉपर किसी जो मेरे सिचुएशन पे खेला हुआ आदमी का कोच नहीं मिला. I think he can understand my feelings. So yeah, and that's the big blessing because he's an Indian coach. So I can, there is a barrier of language sometimes because मुझे नहीं समझ में आती कभी-कभी एकदम tough English or something. So I can talk freely to him and I can open up with him कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. तो that's the something. And yeah, रजत और मैं ऐसा सोचते नहीं है कि हम we think we are a core member and we have. नहीं, आप तो है कोर, हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ. नहीं. सालों के बाद Right. भारतीय बल्लेबाज कोर मेंबर के पास है. That's what I'm हाँ, saying. पर मीन्स हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को देखते हैं दोनों, कि हम दोनों जब भी बैटिंग करते हैं तो बात यही करते हैं कि अपने पीछे कोई नहीं है या अपने आगे कोई नहीं है, अपन दोनों ही हैं और जिनको ये मैच ख़त्म करना है या सम वी हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई ख़राब करता है तो इट्स ओके, वो उनका है, पर अपन दोनों ही एक मीन्स आरसीबी के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि जो मीन्स मोस्टली पीपल डरते हैं वो चीज़ से रिस्पॉन्सिबिलिटी. So we will clean all the shit if someone have done like that thing. So we talk like that. So we will take the responsibility fully 100%. Maga. Weather Andre, perfect fit. Cinema Andre, super hit. 10 minutes Andre. Boys, big basket. 10 minutes Andre, big basket. 10 minutes Andre, big basket. Big Basket, delivering in Bengaluru and everywhere in 10 minutes.
अभी जब आप लीडरशिप ग्रुप में आते हो Yes. फॉर आरसीबी, व्हाट आर द कन्वर्सेशंस लाइक? मतलब इतने सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, आई मीन देयर इज रजत जो आपके इतने Yeah. अच्छे फ्रेंड हैं, देयर इज विराट कोहली एट द एंड ऑफ द डे, देन there's somebody दिनेश कार्तिक, यू हैव अ ग्रेट कोच, ग्रेट इंटरनेशनल कोच. व्हाट आर दोस कन्वर्सेशंस लाइक लीडरशिप ग्रुप में? हर मैच को कैसे अप्रोच करते हो, रोल्स कैसे डिफाइन करते हो? टूर्नामेंट के पहले ही एक क्या कहते हैं टेंटेटिव प्लान बन जाता है कि दिस वे वी वांट टू प्ले द क्रिकेट दिस ईयर. देन वी जस्ट ट्यून करते हैं उसको थोड़ा सा कि इफ एंड बट्स कैसे करना है, उसको कैसे फील करना है. आफ्टर फ्यू गेम्स यू गॉट टू नो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो मैचेस में. मीन्स आपका विनिंग 11 आप एकदम से स्टार्ट मीन्स आपको नहीं पता चलता. कोई टीम के लिए लकीली वो पहले से मिलता है, किसी को बाद में मिलता है. तो वही कन्वर्सेशन चलता है कि हाउ कैन वी कीप आवर विनिंग रेशियो by tactically high all the time in the game. So that way we have to take the decision in every game. So that's conversation always go on. मैं रजत से बात करूंगा या विराट भाई से पूरा कोचिंग स्टाफ बात करेगा या डीके भाई हमसे बात करेंगे. How can we approach? This team is good in this situation, bad in this situation. So it's all about tactics we talk about now because technique is expected from everyone. Mental strength is expected from everyone, so it's time to just make a plan and try to apply on that's we discuss. आपका जो रोल है इन टर्म्स ऑफ द बैक एंड, आप और टिम डेविड जो साथ में बल्लेबाजी करते हैं, एंड यू नो देयर आर अदर्स, you can bat quite deep. This team can bat late till Bhuvi, you can bat actually. So when did you know your role, the players that you have to bat around? ये लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बहुत बातें करते हैं. डज इट मेक अ डिफरेंस यू फील इन टुडेज गेम? No ma'am, I don't feel anything. Nowadays you can see that Rajat Patidar सबसे अच्छे छक्के लेफ्ट हैंड स्पिनर को मार. या एग्जैक्टली. और लेफ्टी बैट्समैन आजकल निकोलस पूरन ऑफ स्पिनर को ही एक ओवर में 3-3. आई थिंक वो थ्योरी पहले था, वैसे बैट्समैन भी सोचते थे. आई थिंक इट्स टोटली चेंज नाउ. एनीवन कैन हिट. पहले जसप्रीत बुमराह भाई को कोई स्वीप मारने को डरता था. Nowadays people are trying to him hit reverse sweep. That's the thing. वो I think everything is changed now. Lefty righty combination doesn't matter. हाँ बस आप जब टीम डेविड मैं ये हमारी एक थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब टीम कोलैप्स होती है या वॉट एवर हैपन्स, सो वी हैव टू चेंज अवर प्लान इंस्टिंक्टली. मीन्स हम ऐसे जो नंबर पे होते हैं, जैसे नंबर 1, 2, 3, they have basic plans with them all because they know that they are going to face 120 balls, but we don't know कि हमें कितने बॉल मिलेंगे, क्या सिचुएशन आएगा. सो आई हैव टू बी लाइक ऑल द टाइम. जब आप बेंच पे ऐसे लाइक एक दूसरे के साथ यू आर सिटिंग, गिव मी वन मैच सिचुएशन वेयर यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एंड जस्ट लाइक ओके अब मेरा मौका कि आपका मौका, ऐसे कभी होता है? हाँ ऑब्वियसली होता है. जैसे पिछले मैच में ही वो चल रहा था कि जल्दी फिनिश करना है, टीम को भेजे या जितेश को भेजे, ऐसा कुछ तो भी चल रहा था. बट दे वर श्योर दे कि मुझे जाना चाहिए, और मैंने अगर विकेट जल्दी गिरती है तो केपी को जाना चाहिए या जितेश को जाना चाहिए या टीम को जाना है. वो तो हमेशा चलता है एंड वी आर यूज्ड टू इट. वी आर मींस इतना क्रिकेट खेले, मैं खुद कैप्टन हूँ तो वो मैं सोच सकता हूँ कि पता है विकेट जल्दी गए तो केपी को भेज सकते हैं, या मैं जा सकता हूँ कि मैं अगर स्पिनर आने वाला है तो जितेश शर्मा कैन फेस रादर देन सेंडिंग लियम, तो जितेश चला जाएगा. या फास्ट बॉलर चल रहे तो दैट्स वी आर वेरी यूज्ड टू इट. बट तो आप अपने आप को मेंटली Yes, स्विच ऑन yes, रखते हो yes. प्रेशर के लिए आराम मैच से? स्टार्ट मेरा होता है जब मैं रोप के अंदर पैर आपका रूटीन क्या है फिर मैच दिन के लिए? बिकॉज़ इट्स अ मैं सिर्फ डिफरेंट सोता हूँ और नेटफ्लिक्स देखता हूँ. टीम मीटिंग्स में क्या करते हो? टीम मीटिंग होता नहीं है मैच के दिन, मैच के एक दिन पहले होता है. हाँ, अच्छा, सो नो मोर ऑन द डे ऑफ द No. मैच. हाँ. I try to sleep as much as possible Hmm. and watch Netflix, good series or something. So I will be like, अब अपनी वाइफ से बात करते हैं, फैमिली से? नहीं मैच के दिन मैं वाइफ से बात कभी. What are you saying? What do you mean? Because I dated her for 8-9 years and I experiment everything. Good morning, good luck, everything that routine. You also know this. I talk to Stuart all the time. अभी भी वो रिटायर्ड मैच देखने खेल रहा है. I still talk to him every day. What do you mean वाइफ से बात नहीं करते? मैंने वो This has experiment किया. changed. No, whenever she says me good luck, Hmm. if I doesn't score that match, I tried again. हाँ. Wish me, Shalaka, wish me again. हाँ. Good luck. And if I doesn't score again, Then next stop. No good luck. I don't know what your luck. Superstitions है? Yes, ma'am. दोनों Why की? not? Yes, yes. But वो routine है, miss. Yeah, routine is- Yes, it's a routine. So she nowadays she only say good morning. I say good morning. That's it. And मैं आपके after बाद that, बात करूंगा. she will got a text or phone call. That's it. I can imagine. Yeah, मैच के बाद बात करूंगा. Because I dated her for so many years, so I have done every experiment. Yeah. Evening, good morning, everything. So
So now we have decided only good morning. That's it. 8-9 years you were dating before you got married. Yes, ma'am. How hard is it to date as a cricketer जब आपके खुद अपने ambitions है कि एक दिन देश के लिए खेलना है, you know, because you have to put a whole part of yourself into wanting to play for the country. So I understand that. Yes. I've seen it, and it's really really hard to give that part of yourself to another person. तो आप में ये balance कहाँ से ढूंढना? I just keep मैं उसको सिर्फ गिफ्ट देते रहता हूँ हर 6 महीने में, तो मैं बैलेंस कर लेता हूँ. What sort of gifts have they got better over the years? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चला कर. No, I think I'm very blessed कि she's very means वो बहुत ज़्यादा mature, मेरे से ज़्यादा mature. She knows everything because she's someone who is very ambitious about her work. वो ऑफिस के लिए उसको कुछ करना है, ये करना है. She want to start her business, cafe, something. She's very means high of energy. Also has big dreams. Yeah. So she understand my things. So 8-9 साल में कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ she's means ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है ना. She always supported me by every means. जब मेरे पास पैसे नहीं तो she used to give me for money for protein whatever. मैं घर पे नहीं मांगता था. तो yeah, I'm blessed. I'm very lucky to have her in my life. I can say straight away. Cricket wise भी she don't get involved in cricket. इतने ही रन क्यों बनाए, ऐसा ही क्यों होगा. But match तो देखती होगी. हाँ, मैच देखती है, बट yeah. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट उसको धीरे धीरे चीजें समझ में है कि ऑन द फील्ड जो होता है वो ऑफ द फील्ड भी वो साथ में लेके आता है. That is what, yeah. हाँ, जैसे आउट हुआ तो शी नोज दैट शी विल नॉट कॉल. शी विल से गुड नाइट, आई लव यू, दैट्स इट. आई विल से गुड नाइट. So, but yeah. But have you ever tried talking about the hard days on the field to your partner? नहीं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, frankly speaking. But try it. Yeah. Share But I don't want to ruin her day or means वो मैं अपना एक्स्ट्रा बर्डन उस पे नहीं देना चाहता हूँ because she is facing. मैं देखता हूँ उसका ऑफिस के मीटिंग्स चलते रहते हैं, फिर वो चीज़ें मुझे भी समझ में आती है कि she is working, she has a workload. तो जितना हो सके मैं अपना बैड फेस दिखाता ही नहीं हूँ उसको कि मैं खुश हूँ, मैं एम हैप्पी, आई एम डूइंग वेरी वेल, एवरीथिंग इज फाइन. So that's kind of thinking मुझ में है कि मैं सोचता हूँ कि because she's handling lots of things as a woman, she has to take care of me, my family, she's working. और फिर उसका जैसे हम एक ही गांव में से एक ही सिटी से अमरावती, so she keep visiting her father, mother, तो उधर के भी कोई इश्यूज होते हैं तो वो भी टेक केयर. तो फिर मैं क्यों एक ऐड ऑन करूँ, ये सोचते रहता हूँ. तो फिर मैं हमेशा खुश रहता हूँ और खुश रहने की कोशिश करता हूँ उसके सामने. अगर वॉट एवर आई एम फीलिंग कि मैं इस चीज़ में सिलेक्ट नहीं हुआ, नो इट्स ओके, मेरा यही नहीं था, so I will take it lightly. So I don't want to But there's the mental game, the mental hurt of it is a very, very relevant aspect of this game. And जो हम और बात करेंगे from that perspective, there's a lot of hurt, no? Being an international cricketer, there's a lot of, you have hard days, you're out of team. There are only hard days. There are There are hard few days. good days. So I mean it's important to be able to share those aspects. मैं बस यही कह रही हूँ क्योंकि जो है ना, I know I'm involved in cricket, but I could also give a different perspective to Stuart or just understand, or even the silly things I'd say, it's okay, it's tomorrow's another day, even if you would be like, no, but it's not, you don't get it. I'm like, no, I get it, it's another day. Kabhi you need a different perspective, you know. I understand, ma'am, but I feel कि मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा था ऐसे एक चीज़ कि मैं डिस्कस करूँगा उसके साथ. मैं इन जनरल में डिस्कस करता हूँ, मीन्स वो चीज़ें नहीं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया. नॉट इन एक्सट्रीम जैसे बात करते हैं जैसे पार्टनर के साथ करना चाहिए वैसा नहीं. मैं सोचता हूँ अगर मैं ये चीज़ बताऊँगा तो उसने मेरे साथ 8 साल जैसे बिहेव किया है या मेरे साथ जैसा नॉर्मल रहे वो चेंज नहीं होना चाहिए कि बिकॉज वो सोचेगी कि यार इसको पहले टेंशन है तो मैं और का इसको इरिटेट करूँ. शी लव्स टू इरिटेट मी ऑल द टाइम. Like how? मीन्स आएंगी, कान खींचेंगी, फेंक के मारेंगी. मीन्स स्मॉल थिंग्स. शी नोज दैट आई लव नेटफ्लिक्स. मैं सोफे में गिर गया तो मैं उठूंगा. शी विल लाइक वॉकिंग and leave. So I don't want to change कि वो सोचे कि let him live in peace, he is in mental stress. No. So that's the thing. I don't want to change anything. I can bear this pain and I can go on. Bear this pain, you can go on. नहीं यार, बदलना चाहिए from that perspective. But that's about growing So I have together. good childhood friend that Yeah, they that's what I meant. Like, कुछ तो होना चाहिए because this is a hard day. Yeah. This is a hard profession to be in. तो कोई तो है from that. हाँ childhood friends है, वो तो समझा ही देते हैं उनके लैंग्वेज. भूले नहीं अभी तक अपने चाइल्डहुड के बचपन. नहीं मैम, वही मेरे दोस्त है अभी तक. 3 दोस्त है मेरे, वही 3 दोस्त है मेरे अभी तक. How
don't you get used to this travel, लगातार travel IPL में जो होता है ना, और आपका भी रोल जो इतनी highly specialized है, मतलब अंत में you have to take so much pressure on yourself. Pressure of travel, pressure of finishing. कैसे manage करती हो? Travel थोड़ा easy हो जाता है because of the friends. Means you can't feel that it's a long journey. When you have good friends, we can chit chat, discuss something. I feel it's a very good time to sit with some senior and talk about, because they can't use their phone or something. So, Smart. so we can have a good conversation there. After playing a game, it's very difficult to travel because sometimes because of that adrenaline, after the match you never means आपको पूरा नींद नहीं होता है कभी, आप means 50-50 में रहते हो, so it's very difficult, but somehow after experience you got to know कि this is business, so you have to take care of it somehow. Over the years आपने बहुत IPL क्रिकेट देखा होगा, विरोधी टीम के रूप में भी देखा होगा. Chinnaswamy always used to think as a wicket that this is batter's paradise. इतना कुछ बदला है, तो as a batting unit आपका भी approach बदलता है क्या? अप्रोच तो ऑब्वियसली बदलता है मैम, क्योंकि हम जैसे जो भी आप नंबर आपको बोला है हमने 5, 6, 7 है, हमको यार आगे को मीन्स हमारे बैट्समैन को देख के हमारे रंग बदलने पड़ते हैं हमको, कि अगर बहुत अच्छा मार रहे हैं तो दैट्स मीन्स विकेट इज नाइस, वी हैव टू गो एंड हिट फ्रॉम फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल, तो वो तो चेंज करना है मैम. वी हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल, फ्लेक्सिबल विद द वे ऑफ वी बैटिंग. पर मैं कोशिश करता हूँ मैं हमेशा अटैक ही करूँ. दैट्स मीन्स आई लव टू अटैक. आई ऑलवेज टू सी दैट प्रेशर ऑन द बॉलर, कि उसको ऐसा लगे कि वॉट एवर द सिचुएशन जितेश केम इन, सो ही कैन, इफ यू बॉल हिम फर्स्ट बॉल शिट, ही कैन हिट. सो दैट फियर आई वांट टू क्रिएट. एंड वो कैसे फियर क्रिएट करना है, दैट्स आई एम लर्निंग फ्रॉम BK1. हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू चूज कम परसेंटेज में रिस्क लेके हाई रिवॉर्ड. आई थिंक आई एम लर्निंग. अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा IPL अभी स्टार्ट हुआ है. मीन्स ये इस सीजन से मैंने पंजाब किंग्स अच्छी है, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ भी बहुत सीखा हूँ, पर वैसा कोच आदमी नहीं मिला मुझे कभी कि जो मुझे सिखा पाए कि मैं ग्रो कर पाऊँ. मैं हमेशा जितना मेरे में था वो मैं कोशिश करता हूँ पुश करके, एफर्ट दे के वो अपना परफॉर्मेंस निकालने के लिए. पर हाउ टू परफॉर्म, कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, आई एम लर्निंग दिस ईयर विद RCB. One of the most interesting thing DK always said, because last couple of years is a great finisher, he was that you don't play the bowler's reputation, you just play the ball. Yes. ऐसे कभी इतने सारे, I mean Stark, Bumrah, they close out innings so well. Yes. How do you get through that when you see okay Bumrah आने वाला है या Mitchell Stark आने वाला है? Because you know what you will get, you know कि Yorkers ही मिलेंगे. That's why DK Anna and me are very good, क्योंकि we share something very similar that we don't fear. If Stark is bowling, if DK Anna said sweep, I will sweep. That confidence I have. Means वो fear नहीं है मुझे, कि I don't play with the reputation. अगर कोई बड़ा बॉलर है तो मैं उसको ही अटैक करने जाता हूँ, ये मेरा माइंडसेट है. तो मैं ऐसा सोचता हूँ अगर जसप्रीत भाई डाल रहे तो इनको ही 3 छक्के मारो, ऐसा मत बोलना, नहीं तो सारे यॉर्कर डालेंगे. Why not? हाँ, मैं वैसे मेंटेलिटी से जाता हूँ, जो उनका मीन्स अच्छा बॉलर है उसको ही अटैक करो. सो दैट्स द थिंग विल गिव यू बिग नेम, गिव प्रेशर टू द अदर टीम कि साला ये तो अपने मेन बॉलर्स को मार सकता है. सो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल बी लाइक वी आर फिनिश, वी आर डन, वी कांट बोल टू हिम. दैट्स माय आइडियोलॉजी, मेंटेलिटी. तो DK Anna भी फिर वो सिमिलर मेरे इसमें, इसलिए वी कैन वर्क टुगेदर वेरी वेल. I love that you call him DK Anna. हाँ, Anna, I call him Anna. That's really sweet. What is it like playing for RCB? Fans, ये जो franchise है, सालों से trophy के, the खोज में है, but still the love, the respect. What is it like? आपकी life कैसे बदली है in the sense of just being part of this franchise One thing I can and doing well for the franchise? Yes. Doing well for the franchise is important. Yeah, I think I can tell one thing, that once I got picked for RCB and I start playing first game, from the first game means वो जब camp हुआ, as a cricketer you are smart, कि आप जानते हो कि आपको performance करना है. Somehow you have, but this year I'm playing with the emotions, frankly speaking, because of the emotions. I'm giving my emotions in the match. Otherwise, we know that there is winning and losing. तो पर वो हम mentally ready रहते, वो hurt नहीं होने देते अंदर. But this time I'm taking it personally because of the people. When I meet people, when the way they talk. मैं इतना नहीं हूँ कि लोगों में मिलके बैठता हूँ, पर मैं जब मिला हूँ, when I saw first time when I was playing Syed Mustaq Ali and in Allur, people were standing. ground. Yeah, people were standing there and there was lots of big player also there. They were playing the game. पर वो बैटिंग के किसी ने कुछ नहीं किया.
शांत थे लोग. जैसे मैं बैटिंग को जी तेज RCB, that moment hit me. This franchise is something different, so it's my responsibility to give whatever I have in myself. जो भी मेरा effort है, मेरा emotions है, I should give it purely and loyally to this. That's what I think. That's beautifully said. अब पता है जब आप स्टेडियम पहुंचते हो ना, have you ever seen the entrance where the Cubbon Park metro station is? तो बगल में there is a Air Force jet. I saw it You must this be side seeing it on every day. Yes, yes, ma'am. वो भी सपना अभी भी है. Yes, ma'am. That's why I made this tattoo, eagle. For that, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं कर पाया तो मैं इसे हमेशा याद रखता हूँ कि that was my dream always. But anything is possible. Yeah, I know, but अभी अभी क्रिकेट खेलो, it's okay. RCB not letting you go anywhere. भी यहीं रहना. I just want to. जेट वो देखते रहना. Yes. Because वो सपना you must keep. मैं विशाखापट्टनम में भी वो एयर फोर्स का शो तो देखता हूँ कभी. Yeah. They will invite you back for the Air Force show here. It's very good Uh-huh. here. The air show in Bangalore is awesome. I never seen. So Bangalore. एयरफोर्स डे विशाखापट्टनम में होता है. इस साल शायद से 2 जगह हुआ था. मेन शो ओडिशा या कहीं तो भी. We always have the air show here, 3 Oh. days a year. Airport के बगल में येलहंका. Oh. It is outstanding. इस बार सूर्य किरण भी आए थे. जो सूर्य किरण in the World Cup, you remember those red fighter jets? Oh yes. World Cup final. Yes, ma'am. yeah? हाँ. This time they came here Oh. in Bangalore. So from our digital partners, Big Basket, Jitesh, thank you so much for joining us. एक hamper है, थोड़े से healthy snacks होंगे शायद. Headphones है शायद इसमें. So I mean there are a few good things that you can really enjoy. But thank you so much for joining us on the Thank you so much. I enjoyed a lot. Thank you. Big Basket presents the RCB podcast.